संडे हम लोग पिछले कई समय से इसमें फोकस करते आए हैं. Stephen, can you check if the thing is connected? Let's look to the Lord as we read the scripture. The title of the sermon is The Surprising Kingdom. Surprising का मतलब अचरज, हैरत, यकायक, ऐसा वाला kingdom परमेश्वर का. Let's read the scriptures. Somehow this one is not working. If you can handle that manually. All right. Just the way हम लोग करते हैं, पहले हम वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे. आइए हम मिलकर के लूका 19:28 से लेकर के पढ़ेंगे. अगला एक और स्लाइड है, हम एक साथ मिलकर इसको पढ़ने पाएं. With a count of 1, 2 and 3, let's go. 1, 2, 3, start. Loudly. Little more louder. Go to the villages ahead of you, and as you enter it, you'll find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you untying it? Say, the Lord needs it. Then who has sent ahead and found it just as he had told them. As they were untying the colt, its owner asked, why are you untying the colt? They replied, the Lord needs it. They brought it to Jesus, their cloaks on the colt, and put Jesus on it. As he went along, he came spread over the cloaks of the road. Then he came near the place where the road goes down to the Mount Olive, and whole crowds of disciples began to praise God in loud voices for all the miracles that he had done. Blessed is the King, come in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Next slide. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Verse 43, the days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in every side. Verse 44, the last verse, they will dash you to the ground, you and the children with your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God's coming to you. Let's pray. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जबकि आपका वचन से हम मनन करते हैं, प्रभु हमारे बीच से हर प्रकार की भटकाने वाली बातों को दूर करें, हमें एकाग्र करें प्रभु, आपसे सुनने के लिए मन दे, और प्रभु हमें समझने के लिए आप अक्ल दे पिता. पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबसे व्यक्तिगत रूप से बातें करें परमेश्वर, होने पाए कि इस प्रचार को, इस संदेश को सुनने जाने के द्वारा आपके नाम की महिमा हो. यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन. सर बिग आइडिया, मैं जैसे आपको बता रहा था, इट्स अ सरप्राइजिंग किंगडम, मैंने बताया आपको, है ना, सरप्राइजिंग. नाउ आई वांट टू आस्क यू कि हाउ मेनी ऑफ यू लाइक सरप्राइजेस? कितना को सरप्राइजेस पसंद है? पसंद है, बहुत पसंद है. ओके, अच्छे वाले सरप्राइज पसंद है, ये नहीं बोला आपने, है ना? You like pleasant surprise, not unpleasant surprise. मैं आजकल सरप्राइज पसंद नहीं करने लगा हूँ. For some reason I am more, I'm a detailed person. मुझे गूगल कैलेंडर में चाहिए, मुझको डिटेल चाहिए, ब्रेकडाउन चाहिए. I am not a person who is enjoying surprises, but अगर कोई मार्वल्स की मूवी होती है ना, आपको मालूम है मार्वल्स वगैरह, उसमें लास्ट में कोई टीजर दे देते हैं, उसके बाद लगेगा अरे इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ना, सरप्राइज क्रिएट होती है. कई बार कुछ कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं, कुछ कुछ किताबें होती है जहां पर पढ़ते पढ़ते अचानक क्या होता है, एक सस्पेंस आ जाता है, राइट? ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बालाजी फिल्म्स, यू नो, वो लोग बहुत ज्यादा करते थे वो.
अचानक खत्म होगा, एंड देन एवरीबॉडी इज बिजी। अगले हफ्ते मिहिर क्या करेगा तुलसी के साथ? ओके, so you understand those are surprises, and we are not talking about those surprises, but we know, हम जानते हैं सरप्राइजेस क्या होती है। सरप्राइज हमारे अंदर में एक थॉट प्रोसेस को क्रिएट करती है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो आने वाला है, और अगर वो अच्छी बात है तो हम तहे दिल से उसका इंतजार करते हैं। एंड अ लॉट ऑफ टाइम अगर वो अनचाही है, अगर हम उसे पसंद नहीं करते हैं, या फिर हम रेडी नहीं है, तो जरूर ये हमारे अंदर बहुत सारा एंजाइटी भी लाता है। आप में से इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? इट ब्रिंग्स एंजाइटी, इट ब्रिंग्स अ टेंशन, एंड हमारा मन में एक अजीब सी बौखलाहट होनी शुरू हो जाती है। सरप्राइजेस आर ग्रेट, but depends what surprise we are talking about. In this message today, we are talking about a surprising kingdom. यीशु मसीह के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हम बताना चाहते हैं that we must be willing to receive Jesus' kingdom in a surprising way. हिंदी में हमें यीशु मसीह की बादशाही के लिए यद्यपि वो सरप्राइजिंगली आए, हमें उसके लिए रेडी होना है। क्यों? क्योंकि आज से कई सालों पहले जब यीशु मसीह कहां प्रवेश किए, आज के दिन के हिसाब से जब यरूशलेम में प्रवेश किए, दैट वाज अ सरप्राइजिंग इवेंट फॉर मोस्ट पीपल। एंड आई विल टेल यू ये सरप्राइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आज क्या है? आज पाम संडे है। हमने गीतों को गाया, हमने वर्शिप किया परमेश्वर को, और हम आज के दिन को मना भी रहे हैं कि आज पाम संडे है। और अगला थर्सडे को क्या होता है पता है आप लोगों को? थर्सडे दैट्स कॉल्ड, मेनी पीपल दे कॉल इट मोम डे। ओके, उसके बाद आता है होली वीक का जो गुड फ्राइडे, एंड देन डेफिनेटली वी नो दैट रेजरेक्शन कम्स, ईस्टर संडे कम्स। बट आज के दिन को अगर हम फोकस करते हैं, व्हाट डू वी सी? जीसस रोड इनटू जेरूशलेम ऑन अ डोंकी टू प्रोक्लेम हिज किंगशिप। यीशु गधी के ऊपर सवार होकर अपने राजत्व को, अपने वो राजा है इस बात को उसने क्या किया? प्रमाणित किया, दर्शाया, लोगों के बीच में रखा, और लोगों ने खजूर के पत्तों को हिला हिला कर उसका स्वागत किया। They were waving the palms and cheering. You understand cheerleaders? They have something in their hand, colorful, and they cheered. These people were cheering, and palm branches, for your information, कितनों को मालूम है नहीं मालूम, बट आपकी सूचना के लिए लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 40 पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेवियों का 23 का 40 और नेहमाया का 8 का 15 अगर आप पढ़ेंगे, वहां आपको पता चलेगा उस जमाने में ताड़ के पत्थर या फिर खजूर के वृक्ष के पत्तों से जॉयफुल ट्रायम्फेंट एंट्री का आगाज किया जाता था। कोई अगर युद्ध से आ रहा है, कोई अगर कोई जय घोषणा करके आ रहा है, स्वागत कैसे होता था? ये कस्टमरी था। खजूर के पत्तों से वो लोग हिलाते थे, स्वागत करते थे, अभिनंदन करते थे और मनाते थे इस बात को। और आज के दिन क्या हुआ? उस दिन यीशु मसीह भी जेरूशलेम में प्रवेश करता है, एंड ही कम्स एज अ वुड बी कॉन्करर, आने वाला विजेता। जरूर वो विजेता पहले से है, लेकिन यहां पर एक मकसद के लिए यीशु मसीह है, और वो विजेता के रूप में यरूशलेम में एंटर कर रहा है। एंड लोग क्या कर रहे हैं? होसैना होसैना, people are doing it. Now आपको बताना चाहूंगा, Renu was telling us about the meaning of होसैना। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपको क्या मालूम है होसैना का मतलब? सीखते हैं दूसरे से। होसैना मतलब प्रभु के नाम में जो आने वाले, प्रभु के नाम में जो आने वाले उसकी जय, जो प्रभु के नाम से आने वाला है उसकी जय हो। ओके, एनी अदर थिंग? एडोरेशन, यस इट्स एडोरेशन, महिमा है, इबादत है। और होसैना इज ऑल्सो अ क्राई फॉर हेल्प, एक छुटकारे की प्रार्थना है कि प्रभु तेरी महिमा में हमें छुटकारा दे। प्रभु आपकी महिमा में, मीन्स लॉर्ड, अगर आप हमें छुटकारा देते ही आपकी महिमा के लिए होने पाए, दैट्स अ प्रेज, दैट्स अ शाउट, दैट्स अ स्लोगन
people were doing Hosanna, Hosanna. Why? Because लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आएगा and मसीहा उन्हें छुटकारा देगा और बंधुआई से बचाएगा, जो क्रूर शासक है उसकी ताड़ना से बचाएगा, उनकी बंदिशों से बचाकर और नया राज्य स्थापन होगा। यीशु मसीह राजा बनेगा। और मैंने आपको बताया था पिछले सरमन में कि भैया वो कौन सा राजा आप उम्मीद कर रहे थे, जो सचमुच का रुपया पैसा धन दौलत राज कर्मचारी एडमिनिस्ट्रेशन उस राजत्व के इंतजार में वो थे और परेशान तो थे, व्याकुल तो थे। तो यीशु जब एंटर करता है, उन्होंने किस बात से स्वागत किया? यस, आ गया हमारा राजा, अब हमें ये छुड़ाएगा। होसैना होसैना, हे परमेश्वर, हे यीशु तू हमें छुटकारा दे। परमेश्वर की महिमा के खातिर ऐसा होने पाए। Today we are going to explore together just the way Jesus came that day. It was very surprising to many people. और आज भी हम इस बारे में देखेंगे कि ये सरप्राइजिंग क्यों है। And I want to tell you, पहले सरप्राइज की बात यहां पर है कि आप अगर देखेंगे कि यरूशलेम में जब वो प्रवेश किया, वो कौन सा सीजन चल रहा था? Any guesses? कौन सा सेलिब्रेशन के लिए यहूदी लोग तैयार हो रहे थे? पैसओवर। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं पैसओवर को? फसा। सुना है आपने? ओके, हम लोग को ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ने की जरूरत है। फसा का उत्सव की तैयारी कर रहे थे। एंड आई वांट टू टेल यू दिस वन। फर्स्ट पॉइंट वुड बी जीसस। ये दिन क्यों खास है? बिकॉज जीसस सेलिब्रेटेड द पासओवर। यीशु मसीह फसा मनाने के लिए घुस रहे हैं। ओके, हर यहूदी, जैसे आज मान लीजिए कई सारे दूसरे मजहब के लोग तीर्थ करते हैं ना, साल में एक बार जाकर के वो तीर्थ करते हैं या पिलग्रिम करते हैं या इबादत करने के लिए वो जाते हैं, अपने अपने तरीके और दस्तूर के मुताबिक वो करते हैं। सो उस समय का दस्तूर क्या था? यहूदी लोग कहां आएंगे? यरूशलेम में आएंगे। किस लिए आएंगे? फसा का उत्सव मनाने के लिए आएंगे, पासओवर मनाने के लिए आएंगे। एंड जीसस ऑल्सो माइंडेड, जीसस ऑल्सो इज कमिंग टू जेरूशलेम टू सेलिब्रेट पासओवर। बट यू नो व्हाट? उस सेलिब्रेशन में एक मेमना मारा जाता है। एंड यीशु मसीह न केवल राजा बन के आ रहा है, लेकिन वो मेमना बनने आ रहा है। राइट? Keep that in your mind. This is heavy. Okay, this is not easy. This is not something हम लोग just सुन के okay, nice information. It's something to grasp in our heart that Jesus coming. यीशु आ रहा है फसा मनाने, पासओवर सेलिब्रेट करने के लिए एंड पासओवर का मेमना भी बनने के लिए। यरूशलेम का राजा, यहूदियों का राजा। यीशु मसीह जब क्रॉस में चढ़ा था, उसके क्रॉस के पीछे क्या लगा दिया था उन्होंने? एक क्या लगाया था? INRI, है ना? You know, in Greek and Aramaic language, it is Ischias Nazarenius Rex Iod. Ischias Nazarenius Rex Iod. The meaning is Jesus is the king of the Jewish people. यीशु यहूदियों का राजा है। By the way, उन्होंने राजा माना नहीं था, उन्होंने ठट्टा करके पीछे लगाया था। ये बोलता है ये यहूदियों का राजा है, चलो मिस्टर राजा आपके सिर के पीछे हम ठट्टा ठोक देते हैं, ये है राजा, चलो बचाओ खुद को। That was a mockery session, not an appreciation session. But Jesus is the king. यीशु राजा है and राजा आया है पासओवर सेलिब्रेट करने के लिए। पासओवर क्या है? पासओवर is the largest festival of Jewish people. यहाँ पर एक वचन, इसको आप देखें। Next day, John was again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." है ना? किसने बोला? यूहन्ना ने बोला। और देखो, Lamb of God, परमेश्वर का मेमना जा रहा है। यीशु मसीह को क्या बोला? परमेश्वर का मेमना जा रहा है। Very right timing of Jesus Christ.
पासओवर के टाइम यहूदी लोग डिनर खाते हैं और डिनर में वो लोग क्या करते हैं, भोज होता है। एंड यीशु मसीह भी क्या करने वाले हैं, भोज करने वाले हैं। इन कड़ियों को जोड़ते रहिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। जीसस इज कमिंग फॉर पासओवर डिनर एंड ही इज गोइंग टू बिकम द डिनर फॉर आवर स्पिरिचुअल फूड। हमारा आत्मिक भोजन, लॉर्ड सपर लेते हैं ना हम, दैट्स आवर आत्मिक भोजन। हम प्रोक्लेम करते हैं यीशु मसीह का डेथ, एंड जीसस का क्या था, ये लास्ट मील था। Traditionally, on planet Earth, this was the last meal of Jesus that Jesus was coming for. यीशु आखिरी भोज के लिए आ रहा था। कब होता है, थर्सडे नाइट। थर्सडे नाइट, माउंट डे, थर्सडे नाइट को यीशु आता है। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे कि मैं बता रहा हूं, लुक द राइटफुल किंग ऑफ जेरूशलेम कमिंग, लुक द सैक्रिफिशियल लैम्ब इज कमिंग। देखो यहूदियों का राजा, यरूशलेम का राजा प्रवेश कर रहा है, और देखो परमेश्वर का मेमना भी रेडी हो रहा है। There are a couple of verses मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा थोड़ी देर में, बट माइंड इट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पासओवर जो होता है वो यहूदी कैलेंडर, जिसको हम लोग बोलते हैं निसान, NISSAN, निसान कार नहीं, ओके, निसान के महीने के 10वें दिन के फर्स्ट मंथ में ये सेलिब्रेशन होता है। और उसके 4 दिन पहले जब काटा जाएगा ना, जब स्लॉटर होगा, सैक्रिफाइस होगा, उसके 4 दिन पहले से टेस्टिंग किया जाता था। स्पॉटलेस है तो, कोई खूंट नहीं है तो, कोई कमी तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं है, चेकिंग करो किसको, उस मेमने को। क्यों, मेमना क्या होने वाला है, सैक्रिफाइस होगा, उसको बलि किया जाएगा, और बेस्ट मेमना होना है, निखुत मेमना होना है, कोई खामी नहीं होना है। तो कौन टेस्ट करेगा, बकरी होता तो टेस्ट कर लेते भैया दुकान से जाके। टेस्टिंग करवाने के लिए मेमना स्वयं आ रहा है। The perfect Lamb of God walking into the streets of Jerusalem. There are scriptures here, मैं चाहता हूं कि हम इसको पढ़ेंगे। Verse 19 to, मैं इसको 44 तक ले जाऊंगा, पर टुकड़े टुकड़े में आपको समझाऊंगा। 29 से 30 में क्या बताया गया है, As he approached Bethpage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he sent 2 disciples. अपने 2 शिष्यों को उसने भेजा, Go to that village, उस गांव में जाओ और बोलो उस गधी को लेकर के आओ जिसके ऊपर कोई अभी तक राइड नहीं किया है। Untie it and bring it. No one had ridden, कोई उसके ऊपर चला नहीं। क्यों? क्योंकि ये किंग का डोंकी है, ये राजा की सवारी है, और सिर्फ राजा उस पे सवार होंगे, उस पर बैठेंगे। ये घटना घटती है। 31 और 32 पद में हम जब जाते हैं, हम क्या देख पाते हैं, अगर कोई तुमसे पूछता है क्यों इसको खोल रहे हो, उनको क्या बताना है, द लॉर्ड नीड्स इट, प्रभु को इसका जरूरत है। Those who were sent ahead went and found just as Jesus told them. यीशु ने जैसा जैसा कहा उन्हें वैसा ही मिला। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं 33-34 में, as they were untying the colt, उस गधी को खोलते समय में उसके मालिक ने पूछा क्यों तुम अनटाई करते हो। उन्होंने क्या जवाब दिया, एग्जैक्टली जो यीशु ने सिखाया था, क्या, द लॉर्ड नीड्स इट, प्रभु को इसका दरकार है। As colt is a donkey, it is a young donkey. Jesus rides the donkey now, and it says humble sign of peace. यीशु, रेणु बता रही थी ना, यीशु चैरियट में नहीं आ रहा था, हाथी पे नहीं आ रहा था। क्यों? Because chariot and hathi is a symbol of war. It's a symbol of chivalrous. युद्ध की घोषणा कर रहा हूं, आक्रमण करने आ रहा हूं। यीशु किस पर आया, गधी पर आया, शांति, नम्रता, दीनता के साथ। मेमना झगड़ा नहीं करेगा कि क्यों मार रहे हो, क्यों सर कर्म कर रहे हो, क्यों काट रहे हो हमको, नहीं नहीं नहीं। ये शायद बोलता है वो तो तैयार होकर गया कि जाकर अपनी गर्दन खुद दे दी,
और गधी पे सवारी, एवरीथिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एक चीज सिंक्रोनाइज हो रहा है, एक एक चीज कड़िया जो है परमेश्वर के एग्जैक्ट प्लान के अनुसार यीशु मसीह एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग आई वुड से। फर्दर ऑन व्हाट हैपेंस, 35 वर्स में क्या बता रहे हैं? They brought it to Jesus. Jesus threw their cloaks on the colt and put Jesus on it. As he went along, people spread their cloaks on the road, and the cloak throwing was an honor paid to the king. Right? सम्मान देने लगे वो लोग कपड़े फेंकने लगे और यीशु मसीह को क्या देने लगे? सम्मान देने लगे, राजा का सम्मान। पहले भी बताया आपको कि वो लोग पत्ते भी हिला रहे थे, वो भी क्या था? कॉन्करर का सम्मान और स्वागत, और अब वो अपने कपड़े भी डाल रहे हैं। एंड दिस सिंबलाइजेस दे वर रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग द किंग। फर्दर ऑन 37-38 वर्स में जब जाते हैं, जब वहां पर आया, he came down, the road goes to the Mount of Olive, and whole crowd of disciples began joyfully to praise God in the loud voice for all the miracles he has done. वो लोग चीखने लगे और सारे उसके चमत्कारों के लिए वो लोग बखान करने लगे। They were shouting praise. The group of disciples and pilgrims rightly identified that time. Okay, याद कीजिए ये कौन सा समय था? मैंने बताया था कौन सा समय था यहूदियों के लिए? एक तीरथ का समय था। वो जा रहे थे यरूशलेम टेंपल में, अपने वेदियों में वो सैक्रिफाइस ऑफर करेंगे। और वो जब ट्रैवल करते थे ना, वो लोग बहुत दूर से पैदल यात्रा करते थे और यहूदी गीतों को गाते थे, साम्स को गाते थे, और गाते गाते यरूशलेम में वो एंटर करते थे। और यहूदियों की भीड़ यहाँ पर है, शहर का पूरा भीड़ है, आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। और यीशु मसीह वहां पर एंटर कर रहा है, और जब वो देखते हैं लोग पत्ते हिला रहे हैं, और जब वो देखते हैं कि लोग कपड़े डाल रहे हैं, वो भी उनके साथ शरीक हो गए, उनके साथ हो लिए। एंड दे स्टार्टेड प्रेजिंग मेसाया। व्हाई? उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने क्या कर लिया? पहचान लिया कि ये कौन है। लेकिन किन्होंने नहीं पहचाना? वहां पर कुछ फरीसी थे, उन्होंने नहीं पहचाना। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि टीचर रिब्यूक योर डिसाइपल्स, हे गुरु अपने शिष्यों को बोल चिल्लाना बंद करे, मुंह बंद करे। यीशु ने क्या जवाब दिया उनको? वो लोग होशाना गा रहे थे ना, यीशु ने क्या जवाब दिया उनको? अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। राइट? जीसस बोल रहा है कि तुम अब बात मत करो, तुम नहीं पहचान रहे हो जो वो लोग पहचान रहे हैं। लोग अभी पहचान रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। एंड जीसस एक्चुअली अपने आइडेंटिटी को छुपाने में, जीसस वाज नॉट ट्राइंग टू बिकम ओवर सिंप्लीफाइड हम्बल। नहीं, मेरे को सम्मान नहीं चाहिए। नो, ही इज कमिंग एज ए किंग। वो राजा होके आ रहा है, एंड वो उन्हें मना करने के लिए भी नहीं बोल रहा है। उनको जय जयकार करने दो। लेट दिस कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि ये तो भविष्यवाणी पूरी हो रही है, इसको होने दीजिए, इसको चलने दीजिए। आगे क्या होता है? Verse 41 and 42 we see that as he approached Jerusalem and saw the city, अब वो यरूशलेम के फाटकों के सामने है, शहर के सामने है। एंड यीशु क्या करता है? रोता है। He wept, and उसने क्या कहा? He wept over it. यरूशलेम की हालात पर उसको तरस आया और उसने रोया और क्या कहा? If you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. और तू अगर जानता है यरूशलेम, तू अगर पहचान लेता आज के इस दिन को। क्यों? यरूशलेम किस चीज के लिए गुनहगार था? एक से एक नबी आए, यरूशलेम ने क्या किया? उनको मार गिराया, कत्ल करते रहे, प्रभु भेजते रहे अलग अलग लोगों को। यरूशलेम हैज बीन गिल्टी एंड सिंफुल ऑफ नॉट बिलीविंग इन द प्लान ऑफ द लॉर्ड। और अब कौन आया है? यीशु खुद आया है। एंड आज भी कॉन्स्पिरेसीज चल रही है, आज भी षड्यंत्र चल रहे हैं, आज भी प्रभु का अलगाव चल रहा है। एंड जीसस सेड ये तुमसे अब छुपा लिया जाएगा, और टाइम नहीं है। गॉड का जो प्लान है, चाहे वो इंसाफ है, चाहे वो अनुग्रह है, वो एग्जीक्यूट करने जा रहा है। इन द ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा में नो का मतलब है गिनुस्को,
जो कि मतलब कि काश कि तू जानता, क्या नहीं जानते, छोटा सा इंफॉर्मेशन नहीं, गॉड के प्लान को वो नहीं समझ पाए प्रॉपरली। द फैरिसी कुड नॉट। आपको मालूम है जेरूसलम का मतलब क्या है? जेरूसलम, we know it's a place. जेरूसलम means that अब वो एक्चुअली सही चीज को कंप्लीटली देख पाएंगे। यरूशलेम का शाब्दिक अर्थ है now they will know the completeness and the wholesome picture. This is what Jesus is coming for. Verse 43-44, they will come upon you. Who? They will come upon you and when your enemies will build an embankment. यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ऊपर आने वाले हैं, they will attack you. And I want to tell you, AD 70 यरूशलेम टेंपल का विनाश हुआ था। मुझे नहीं पता ये आप लोग को मालूम है कि दिस अ प्रोफेसी, एक जो प्रोफेसी हुई थी वो ऑलरेडी फुलफिल हुआ है AD 70। दिस इज 2024। AD 70 में यरूशलेम का टेंपल का डिस्ट्रक्शन हुआ है। Even today people are wanting to build the temple. ये बाइबल में one of the very important prophecy है यरूशलेम का टेंपल। आज क्यों गाजा, पैलेस्टाइन, इजराइल इतना जो चिक चल रहा है, there is a lot of Old Testament thing. Today government of India is trying to record कि कब से मैं और गुड्डू बात कर रहे थे इसको लेकर कि पॉलिटिकली कब से पैलेस्टाइन और इजराइल का गड़बड़ चल रहा है। हमने बोला ये तो राजनीतिक डेटा है, आप बाइबल में आ जाइए ओल्ड टेस्टामेंट से, हम आपको बताएंगे कब से ये झगड़ा शुरू हुआ है और आज भी कंटिन्यू है। दिस इज अमेजिंग गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम जिस किताब, हम जिस कलाम पर विश्वास करते हैं ये कोई परियों की कहानियां नहीं है। दिस इज अ हिस्ट्री पास्ट एंड आज भी परमेश्वर इतिहास बना रहा है, सारी चीजें फुलफिल हो रही है। एंड आई वांट टू टेल यू दैट वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री व्हाट गॉड इज मेकिंग। इंपॉर्टेंट घटना यहां पर घट रहा है, जेरूसलम टेंपल का डिस्ट्रक्शन हुआ। Verse 24, the painful truth is the Pharisees and other religious leaders, उन्होंने नहीं देखा यीशु को। मैं रिपीट करता हूं, फरीसियों ने और दूसरे धार्मिक नेताओं ने क्या नहीं देखा? यीशु मसीह को पहचाना नहीं। बाकी सबने उसको राजा बोला, उसको प्रेस किया, उसको चीयर किया। Jesus came to celebrate Passover. Everybody saw. किसने नहीं देखा? Pharisees and जो other religious leader, they could not perceive the Messiah. सारा जिंदगी वो लोग मसीहा का वेट कर रहा था, प्रभु मसीहा भेज, प्रभु मसीहा भेज। मसीहा आया लेकिन इनकी हृदय की कठोरता मसीहा को देख नहीं पा रही है। Jesus gave a pleasant surprise, but they are not desiring any surprise. They have their own truths. उनको अपने ही कॉन्सेप्ट्स में जीना है, उन्हें कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, उन्हें कोई हैरत करने वाली बात नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए भी नहीं कि मसीहा हमें सरप्राइज करेगा, हमारी हालत चेंज करेगा, वो आएगा हमें उद्धार करेगा। लोगों ने इस बात को नहीं समझा, ये दो ग्रुप ने इस बात को नहीं समझा। Number 2 point that takes me there. First, Jesus came for the Passover and he came as a king and he became a lamb for the Passover. That was a proper preparation, correct? किसी ने ढकेल के नहीं लाया, proper plan execute हो रहा है। लेकिन क्या हुआ? Second point हमें बताता है, they could not see Jesus, वो यीशु को देख न सके। You know, it's shocking, you know, sometimes मैं एक दो बार इस उदाहरण को दिया हूं। आप लोग पहाड़ में गए होंगे कभी, पहाड़, स्नो या नियर बाय एरिया। जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हुए दूर से पहाड़ में बर्फ देखते हो ना, स्नो देखते हो, जनरली क्या एक्सप्रेशन रहता है? दिख है ना, दिख गया, माउंटेन स्नो में है। इट्स कॉल्ड सरप्राइज, करेक्ट? हमारे भाई हैं चंडीगढ़ में, राकेश भाई, हिमाचल के हैं, वहाँ पे पासवान है वो और बिजनेस भी करते हैं। ही इज अ बिजनेसमैन एंड एज वेल एज अ पास्टर। वो मुझको बोलता है, वो गाड़ी चला रहा है एक बार हिमाचल में, हम लोग थोड़े बौखला गए, अरे अरे पार पार पार।
चलाया जा रहा है। मतलब भाई जी आप लोग देख लीजिए, हम तो बड़े हुए एसी में क्या देखना है, ये सफेद सफेद बोर हो गए, सफेद सफेद बोर हो गए। वो बचपन से बर्फ में बड़ा हुआ, स्नो में बड़ा हुआ, खेल के बड़ा हुआ, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, परेशान हो जाते इतना सफेद क्यों है भाई। जब ज्यादा बर्फबारी हो जाती है वो क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतना बर्फबारी कैसे है, सब कुछ तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है। What I'm trying to say is कि कई बार कुछ चीजें बहुत आम हो जाती है लोगों के लिए, खास चीज भी क्या लगने लगती है, आम लगने लगती है। फरीसी लोग और धार्मिक गुरु लोग धर्म कर्म के अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि सच्चा परमेश्वर स्वयं उनके सम्मुख आया, लेकिन उनको अपने धर्म से मतलब था, उनको मसीहा से कोई मतलब नहीं था। Isn't that shocking? आप देख रहे हो लेकिन आप देख नहीं रहे हो, होता है ना। हम आंखों से तो देख रहे हैं लेकिन जो देखना चाहिए वो हम नहीं देख पाते हैं। एंड बाय द वे ये सिर्फ फरीसियों की बात और रिलीजियस लीडर्स की बात नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स वी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड वी डोंट सी, वी डोंट सी God is doing things but we don't see. Zechariah chapter 9 verse 9, that was a fulfillment. क्या लिखा था, ये हम पढ़ते हैं एक साथ। Rejoice, daughters of Jerusalem, see your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. गधी का बच्चा, यम उस पे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या लिखा है, राजा आ रहा है। उल्लास कर डॉटर जायन, चिल्ला यरूशलेम, है ना, महिमा कर क्योंकि तेरा राजा रस्तबाज धार्मिक वो आ रहा है। और वो कैसे आ रहा है, गधे के ऊपर बैठ के आ रहा है। कई हजार साल पहले की बात है, यीशु मसीह के आने के पहले भविष्यवाणी हुई, परमेश्वर का मंसूबा पूरा होगा। एंड गॉड वांटेड पीपल टू सी द मसाया, परमेश्वर चाहते थे कि मसीहा को देखे पहचाने, लेकिन कुछ लोग हैं जो मसीहा को क्या कर रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं। यू नो यीशु मसीह के टाइम में यीशु ने हीलिंग किया, करेक्ट, हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने बहुत हीलिंग किया, यीशु ने मिरेकल्स किए। एक बड़ा मिरेकल बताइए, बहुत बड़ा मिरेकल, लाजरस को जिला दिया। ओके, लाजरस को जिलाया, वेरी गुड। और टर्निंग वाटर इनटू वाइन, ओके, लंगड़े को चलाया, यीशु ने नहीं, जीसस का मिरेकल, न्यू टेस्टामेंट। हाँ, सबसे बड़ा बैंक्वेट, सबसे बड़ा केटरिंग मैनेजमेंट, बिना कोटेशन, बिना केटरिंग कंपनी के इतना बड़ा केटरिंग चलाया कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जीसस डिड सम अमेजिंग थिंग और इतने बड़े बड़े मिरेकल किया, लेकिन क्या हुआ, लोग पहचान नहीं रहे थे, है ना। जब पूछा गया बरअब्बा ना यीशु, लोगों ने क्या चिल्लाया, किसको छोड़े, बरअब्बा को छोड़ो। अरे ये वही यीशु नहीं जिसने तुम्हारे बिगड़े काम बनाए, जिसने खिलाया, रोटी खा के गया था, अगले दिन फिर रोटी खाने के चक्कर में गया था, क्योंकि तुम तो मसीहा को नहीं ढूंढ रहा था, सोचा था फिर रोटी मिलेगा। लेकिन यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आए हो कि तुम्हें परमेश्वर की बातें सुननी है, तुम मेरे पीछे इसलिए आए हो क्योंकि तुमको खाना खाना है। कितने लोग कितने मतलब को लेकर के यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आज भी है, आज भी कई लोग हैं ना, যিশুর কাছে আসুন এটা হয়ে যাবে, যিশুর কাছে আসুন ওটা হয়ে যাবে। एंड दुख की बात है कई बार लोग उसी को लेकर मार्केटिंग भी करते हैं, আপনি যিশুকে বিশ্বাস করুন এটা হয়ে যাবে, যিশুকে বিশ্বাস করুন হয়ে যাবে। আরে বাবা সব হয়ে যাবে, সবার আগে গসপেल तो दाओ, पहले सुसमाचार देना है, उसके बाद बाकी की बातें करनी है ना। नौकरी मिल जाएगा, शादी हो जाएगा, बिगड़े काम बच जाएंगे, डेट्स मिट जाएंगे, लोन मिट जाएंगे। यीशु मसीह कोई मुनीम नहीं है, यीशु मसीह कोई साहूकार नहीं है, यीशु कोई बैंक नहीं है, यीशु मसीहा है। सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्या है उसका, मसीहा, वो मसीहा है। और वो क्या है, राजा है। राजा को राजा का रुतबा मिलना चाहिए, मसीहा की जरूरत हमें है, हमें उसका यथार्थ जगह देना है। जीसस हैज टू
to be treated as a king. If in my family Jesus is not a king, then maybe I am living with the principles of the world. मैं दुनिया के चाल में चल रहा हूं. हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम कमजोर हैं, हमारे बीच में आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं. मैं हमेशा इस बात को, इवन हमारे फैमिली में जब हम किसी टॉपिक को लेकर के डिबेट कर रहे हैं, एंड मैं इमीडिएटली बोलता हूं, क्या बोलता हूं? लेट्स डिबेट ऑन द टॉपिक. आइए हम टॉपिक पे फोकस करें, एक दूसरे पर अटैक ना करें. Why? Because हमारा खुदा कौन है? यीशु मसीह है. Jesus is the head of this family. यीशु मसीह हमारे परिवार का राजा है. हम उन्हें अनदेखा ना करें. फरीसी पहचान नहीं पाए थे, उनकी गलती नहीं थी. क्यों? हमने चिंते पर चिनापनी के, हाँ कहीं तो मिले थे ना, कौन है आप, ऐसा बोलते हैं ना लोग. It's not that. It's not that they couldn't recognize. They didn't wanted to recognize. They didn't wanted to acknowledge. वो सुनना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे. खाना खाने के बाद, मिरेकल्स लेने के बाद, सारे करिश्मों को देखने के बाद, Jesus did all these things. Think about your own past. There are many things Jesus did. यीशु ने बहुत काम किया आपके लाइफ में और आज भी कर रहा है. गड़बड़ कहां हो सकता है, गुंजाइश कहां है, अगर हम फरीसियों के जैसे, धार्मिक नेताओं के जैसे देख नहीं पाए. जीसस है, जीसस चल रहा है, जीसस गदी पे है, रहने दीजिए उसको. हम तो भाई अपने ही चीज में पड़े. Maybe you and I can relate with it, right? हम रिलेट कर पाते हैं इन बातों से. क्या रिलेट कर पाते हैं? Jesus did all these things and they yet could not recognize Jesus. On the other hand, I realize I'm not so different, honestly speaking. I'm not so different. I wonder how many times मैं अब भी सोचता हूं, कई बार परमेश्वर कितने तरीके से मेरे लाइफ में काम करने आया, काम किया, काम करके निकल भी लिया, बट कई बार मैं समझ भी नहीं पाया कि यीशु ने किया. कई बार मुझे लगा मैंने किया, कई बार मुझे लगा मेरे ज्ञान ने किया, कई बार मुझे लगा मेरे टेक्नोलॉजी ने किया, कई बार मुझे लगा पाड़ा के या मोहल्ले के उस भैया ने किया, कई बार लगा उस डॉक्टर ने किया, कई बार लगा उस अंकल या आंटी ने कर दिया, या मेरे दादाजी ने कर दिया, या पापा के एफडी ने कर दिया. कई बार बहुत कुछ लगता है और मैं समझ नहीं पाता हूं कि कौन किया. यीशु ने किया, बट मैं देख नहीं पाता हूं. पर मालूम है आपको, जब हम देखते नहीं है तब क्या होता है? हम परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े होते हैं, न चाहते हुए भी. जब हम परमेश्वर को, यीशु को राजा के रूप में हमारे फैमिली में, हमारे वर्क में, हमारे जॉब में, हमारे मोहल्ले में, हमारे नेबरहुड में हम यीशु को अपना राजा नहीं मान पाते हैं, हम यीशु के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं. We don't want to, but that's what the truth is. By the way, Pharisees were dead against. Why? क्योंकि मैंने आपको पिछले सर्मन्स में बताया था, उनका धंधा चौपट हो रहा था. उनका धंधा चौपट हो रहा था. A lot of time people don't want to see Jesus in their life because they think their agenda will be in trouble. उनका मकसद पूरा नहीं होगा. ऐसा न होने पाए, हम वैसे न बनने पाए. जब हम इस पैशन वीक से जा रहे हैं, परमेश्वर ही आप दे, we don't want to miss seeing Jesus. अपने एजेंडा में, अपने खुददारी में, अपने क्या बोलेंगे, ईगो में, अपने अहंकार में, अपने दब्बूपने में, अपने जिद्दीपने में हम इतना नमत हो जाए कि हम यीशु के काम को न देख सके, उसकी प्रभुता को इनकार करें, उसकी किंगशिप को स्वीकार न करें. ऐसा न होने पाए. नहीं तो यीशु क्या बोलता है? हे यरूशलेम, हाय तौबा तुझ पर, तूने सुना नहीं, तूने देखा नहीं, अब तुझे कौन बचाएगा? बिकॉज परमेश्वर का गजब वो तो आएगा. When we don't stand with God, we stand against God. That's not the right place. It's scary. I fear. मुझे डर लगता है उस बात से. एक इंसान विश्वास में कमजोर है, ये प्रॉब्लम नहीं है.
एक विश्वास में रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ये भी शायद प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई अपने ईमान को इनकार कर रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। People don't go to hell because they are not getting the gospel. People will go to hell because they are saying no to Jesus. जो यीशु का इनकार करेगा प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, there is no other way. बुक ऑफ हिब्रूज बोलता है कि और जब तुमने खुशखबरी सुन ली, यीशु के सुसमाचार को पा लिया, उसकी कुर्बानी हो गई, और इसके बाद भी तुम अगर गुनाह की चीजों को नहीं छोड़ते हो तो कोई बलिदान और बचा ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का इंसाफ जो आएगा, यरूशलेम के ऊपर क्या आने वाला है? यीशु ने बोला, ओ जेरूशलेम, ओ जेरूशलेम। यीशु झुल्लाया नहीं, गुस्साया नहीं, चिड़चिड़ाया नहीं, यीशु ने आंसू बहाए। Jesus felt pity at the stubbornness of Jerusalem, at the self-centeredness of Jerusalem. स्वार्थीपन, उसका हट यीशु को देख नहीं पाया। They could not see Jesus. There are others, मैं जानता हूं कि आज की सुबह अगर मैं यहां पर बात करूं, हमें से कई जन हैं, शायद हम अलग अलग हालातों से जूझ रहे हैं। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ दर्द है, कुछ लोगों के लाइफ में एक लॉस है, किसी के लाइफ में हो सकता है एक डर है, किसी के लाइफ में हो सकता है भय है, और कुछ लोग हैं यहां पर जो लोग बहुत खुश है अपने सक्सेस को लेकर के। हमें दोनों में नहीं पड़ना है। हमें अपनी सफलता के कारण अहंकारी भी नहीं बनना है कि हम यीशु को किंगशिप को इनकार करें, और हमें इतना भी लाचार नहीं बनना है कि जो राजा है उसके राजत्व को वेलकम ना कर पाए, हम सरेंडर करने पाए। That leads me to my last point. Do not get bitter. Okay? Jesus is going to drink the bitter cup. Don't get bitter. What was the first point? पहला पॉइंट क्या था? Jesus celebrated Passover. Second point? Louder. They could not see Jesus. I explained why and how and related with our own life. हमारी जिंदगी से हमने किया। Do not get bitter. Don't get bitter का मतलब क्या है यहाँ पर? हम अपने हृदय को कठोर न करने पाए। Keep your hands open and willing to receive the surprising kingdom of God. यीशु मसीह जो सरप्राइज करता है हमें, वो अलग अलग रीति से हमारे लाइफ में एंट्री लेता है, अलग अलग रीति से हमारे हालातों में एंट्री लेता है। हम रिस्ट्रेन ना करें, वाइड ओपन उनको वेलकम करें। यीशु आप मेरे लाइफ में काम कर, सरप्राइज कर मुझे प्रभु, मेरे मामले, मेरे एजेंडे, मेरे प्लानिंग्स मैं आपको देता हूं। आई एम ओके अगर आप मुझे सरप्राइज करें। आपका प्लान अगर चौपट हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना, कई बार, है ना? आपने बहुत प्लान किया था, बट मैं बोलूंगा अगर यीशु राजा है, देन आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु ये मेरी प्लानिंग्स हैं, बट आई वांट यू टू सरप्राइज मी। डज दैट मेक सेंस? डोंट गेट इरिटेटेड एंड बिटर। प्रभु मैंने इतना साल से प्रार्थना किया था, ये वाला, वो भी वाला, लेकिन आपने अभी तक नहीं दिया। वो हमारे हार्ट को हार्डन ना करने पाए, हमारे हार्ट को कड़वा ना करने पाए, हमारे हार्ट को लाचार ना करने पाए, मायूस ना करने पाए। वो क्या करने पाए? हम ओपन होने पाए परमेश्वर के प्रति और उनको वेलकम करने पाए। I can think of this. There are many instances in my own life. मिनिस्ट्री में बहुत साल हो गए, अभी तो ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 20 years होने को चले हैं। बहुत चीज देखा, बहुत चीज समझा, बहुत हालात देखे। One of the thing I want to tell you that so many times मैंने एक तरह से योजना बनाया और परमेश्वर ने उसे टोटली बदल दिया। और जब बदला, अच्छा वाला बदला। पहले मैं उसको समझ नहीं पाता था जब मैं प्रभु को पुश करता था, नहीं, ये नहीं मेरा, आप ब्लेस करो इसमें,
ये मैंने प्लान किया है, मेरे फैमिली के लिए मैंने ये प्लान किया है, मेरे फ्यूचर के लिए मैंने ये प्लान किया है, मेरी शादी के लिए मैंने ये प्लान किया है, मेरे जॉब के लिए मैंने ये प्लान किया है, मेरे बच्चों के लिए मैंने ये प्लान किया, इस पर आशीर्वाद करो। एंड बड़े हिसाब से लोग प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु हमारा ये है, इस पे आशीष करें, प्रभु वो है, आशीष कीजिए। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ये मेरा प्लान है, मैंने बनाया है, सोच के बनाया है, बट लॉर्ड मैं तो लिमिटेड हूं, मैं तो जानता नहीं हूं, मेरा एक्सपीरियंस लॉर्ड अच्छा है बट आपके एक्सपीरियंस और प्रभुता से बढ़कर नहीं है। प्रभु आप मुझे सरप्राइज कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी योजना मेरे लिए भली है, भलाई को उत्पन्न करेंगी। सो मैं उस कड़वाहट और रुष्टता से और ढीठपने से आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, दिल खोलकर परमेश्वर के आगे जाना चाहता हूं। He might not show up the way you expect him, but he will do it in his own way. यरूशलेम के लोगों ने आशा नहीं किया था राजा कैसे बनेगा। राजा उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था? हमारा राजा आएगा, सिंहासन में बैठेगा, बॉस की कुर्सी में बैठेगा, पियोन्स रहेंगे, मंत्री रहेंगे, मैनेजर्स रहेंगे, एग्जीक्यूटिव रहेंगे, हम फर्स्ट क्लास रहेंगे। ओ यस राजा, आजा राजा, प्लीज आजा। यीशु ने बोला मैं वो राजा नहीं, मैं वो राजा नहीं, आई एम गोइंग टू सरप्राइज यू, आई एम द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, बट आई एम ए सफरिंग किंग। मैं आऊंगा और मैं तुम्हें उस चीज से उद्धार दूंगा जो तुझे जहन्नम ले जा सकता है। तेरा पैसा तुझे जहन्नम भी ले जाएगा, तेरा करियर वहीं ले जाएगा अगर यीशु नहीं है लाइफ में। जीसस वांटेड टू बी देयर, इटर्नल किंग। दुनिया का किंग खत्म हो जाएगा, इटर्नल किंग खत्म नहीं होगा। सो आपके और मेरे लिए क्या है कंक्लूजन? एज वी रैप अप, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 चीजें आपके साथ हो सकती हैं अगर आप वेलकम करना चाहते हैं। मैंने क्या बताया था? सरप्राइजिंग किंगडम ना, सरप्राइजिंग किंगडम ना केवल यरूशलेम के लोगों के लिए सरप्राइज था, वो घटना हो चुका है। आज जब हम इस पे मनन कर रहे हैं, यीशु मसीह का ट्रायम्फल एंट्री, उनका जय यात्रा आपके मेरे लाइफ में भी होने पाए, सरप्राइजिंगली होने पाए। हर एरिया में प्रभु हमें सरप्राइज करे। कहां पर? नंबर 1 प्रोसेस, राइट? हमारे लाइफ के नंबर 1 पीपल, लाइफ के कई सारे ऐसे जगह होंगे, राइट? यहां पर हम बोलेंगे यीशु ने कहा धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, कितनी सारी बातें बताई ना, बीएटिट्यूड्स। मैं बताना चाहूंगा ये सारी जो धन्य वाली बातें हैं, धन्य वाली बातें हैं, वो कंज्यूमरिज्म को लेकर के नहीं थी, पैसों को लेकर के नहीं थी, ये सब को लेकर के नहीं थी, वो था आत्मा में धन्य होने के बारे में। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं परमेश्वर सरप्राइज करेगा आपको, ऐसे लोग आपके लाइफ में लाएगा, ऐसे लोग आपके लाइफ में लाएगा जो आपको बनाने में मदद करेंगे। क्या आप उस सरप्राइज को एक्सेप्ट करेंगे? या फिर आप बोलेंगे अरे ये तो डिस्ट्रैक्शन है, ये तो मेरे को कुछ दूसरा ही कुछ सिखा रहा है, मेरे को नहीं सीखना है, मैं जैसा जानता हूं मैं वैसा जानता हूं। यू विल मिस द सरप्राइज ऑफ गॉड। परमेश्वर के सरप्राइज को मिक्स मत कीजिए अपने अड़ियलपने की वजह से। मैं खुद से भी कह रहा हूं, I have to welcome the people of God who should speak into my life. Not only that, there is a second part. God will make you that person in others' life. Nobody said amen. प्रभु आपको वैसा बनाए दूसरे के जीवन में, ताकि दूसरे जीवन में भी वो सरप्राइज आए। मैंने बताया आपको फ्रूटफुल बनना है, हमको वेस्ट लाइफ नहीं बिताना है, फ्रूटफुल लाइफ बिताना है। सो इस समय में बी रेडी फॉर सरप्राइजेस ऑफ people. Be that people to others also. Second, process. I don't have time to read all, but just want to say यहां पर भी कि Sermon on the Mount ना, पहाड़ी उपदेश, वहां पर भी यीशु ने बहुत सारी बातें करी, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ऐसे प्रक्रियाएं, हालात लाएगा। कितने लोग सोचते हैं आप बहुत सारे हालातों से गुजरते हैं? हम गुजरते हैं। मैं बताना चाहता हूं इस दिन को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, हम प्रभु को वेलकम करें कि प्रभु हमारे हालातों में भी हमें सरप्राइज कर, कि हम आपको न देखें ऐसा ना हो, हम देखने पाए आपको। लेट गॉड डू इट। एंड फाइनली प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर अपनी योजनाएं पूरी करने पाए। मे गॉड गिव अस प्लान, रादर लेट अस आस्क गॉड फॉर हिज प्लान। हम प्रभु से उनकी योजनाएं मांगने पाए। I want to end here with this thought
गुड फ्राइडे आ रहा है, ट्रायम्फल एंट्री हो रहा है। यरूशलेम के लोगों ने यीशु को पहचाना नहीं, जिन्होंने पहचाना जय जयकार किया, जिन्होंने नहीं पहचाना उनके ऊपर परमेश्वर अफसोस मनाया। May the Lord feel joyful about us, not He regret for us. Let's all pray with open hearts, allowing God to in our life. आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम अपने दिलों को खोलते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप देखें अगर हमारे दिल में कहीं पर आप देखते हैं कि हम कठोर हैं, हम सेल्फिश हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम मसीह को नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर हमारे हृदय में आप काम करें। We welcome you, Lord. Surprise us by people, surprise us by your purposes, your processes, and Lord, your plans. हम पर अनुग्रह कर पिता, हम कमजोर हैं, हमें बलवंत कर। हम अपने दिल को, हमारे मन को, हमारे परिवार को, हमारे काम को, हमारे बच्चों को, हमारी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। सारी महिमा, सारा इज्जत हम आपको देते हैं और सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा हो, आमीन। सबको जय मसीह की।